Hello students, welcome back to our channel Gyan Manji Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So my dear all students, after your this vacation period, again we are going with our this syllabus. So students, in our last so many lectures, we had completed our 2 lessons. Even we can say our 2 units, right? So from today onwards, we are going to start our continue. Okay, so today third unit is there. So in this third unit, two different chapters are there. Okay, so let's see first what is the title of this third unit. Two stories about flying. So this title itself tells us that here we have two different stories about flying, राइट. सो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. तो ये यूनिट में दो अलग अलग चैप्टर्स हम लोग सीखेंगे. what will be the center idea of this center idea of the unit about flying. Okay, so two different stories. Which two stories are there? So here we have names. His First Flight by Liam O'Flaherty. So that is our first chapter. And the second is Black Aeroplane by Frederick Forster. Okay, so these two chapters are there in this third unit. So from today onwards, we are going to start our first chapter of third unit, and that is his first flight. Okay, so whose first flight and how the chapter is there, so that we will see further. So students, here let's get started our today's lecture with content. So the name of the chapter is His First Flight. तो यहाँ पे his किसी के बारे में बात की गई है, किसी की फर्स्ट फ्लाइट है. तो कैसी फ्लाइट है, मतलब वो एयरप्लेन वाली फ्लाइट है या फिर उड़ने की बात है, तो वो हम ये यूनिट में देखेंगे. सो हिज फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैच. सो हियर द नेम द यंग सीगल. तो सीगल क्या है? व्हाट इज सीगल? किसी पर्सन का नाम है? नो. सो द सीगल दैट इज द नेम ऑफ अ बर्ड जो सीशोर मतलब कि बीच होता है, वहाँ पे जो बर्ड्स रहते हैं वो बर्ड में से एक बर्ड होता है, उसका नाम है सीगल. मतलब वो कहाँ पे रहता है? बीच जो होता है वहाँ पे ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ही रहता है. दरियाई पक्षी जो हम ऐसे बोलते हैं, तो ये सीगल है, उसका नाम सीगल है. तो ये स्टोरी में हम ये यंग सीगल के बारे में देखेंगे. ओके, सो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैच. तो वो अपनी जगह पर अकेला था. कौन? यंग सीगल. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर had already flown away the day before. So the young seagull was alone on his ledge. So what is ledge? A narrow horizontal shelf projecting from a wall. तो यहाँ पे क्लिफ की बात की गई है. तो वो जो एक जहाँ पे सीगल रहता था, तो उसके बारे में बात की गई है. जो छोटा सा रॉक होता है, उसकी एक जगह होती है, तो वहाँ पर वो अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. The day before, his brothers and his sister had already flown away. जब जिस दिन की बात कर रहे हैं, उसके दिन के पहले ही उसके जो ब्रदर्स और उसकी जो सिस्टर्स थे, उसने पहले से वो लोग उड़ गए थे. Flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि वो कैसे डरता है, राइट. सो उसके जो
ब्रदर्स थे, सिस्टर्स थे, वो तो ऑलरेडी उड़ चुके थे, पर वो अभी भी वहीं ही बैठा था, राइट? तो ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वो अपने ब्रदर्स और सिस्टर के साथ उड़ने के लिए वो बहुत ही डर रहा था। वो जो हाईएस्ट पीक था, क्लिफ था, वहाँ पे बैठा था लैज में। देन somehow when he had taken a little run forward to the brink of the edge, तो उसके जो एक लैंड होता है एज का, वहाँ पे पहुँच जाता है, पर फिर से वो पीछे आ जाता है। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, दैट्स वाई ही ट्राइड टू फ्लाई, बट ही वॉज वेरी अफ्रेड टू फ्लाई। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. For Sigil, it was very far away. Long distance was there for Sigil, miles down. He had to fly. He felt certain that his wings would never support him. Yes, it happens when we afraid. तो यहाँ पे सिगल को भी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी उसने एक बार भी वो उड़ा नहीं है, तो उसे ऐसा लगा कि मैं कभी उड़ ही नहीं सकूँगा। ही वॉज फीलिंग लाइक दैट। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसके जो पंख है, विंग्स है, वो उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बैंड हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लैच वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो फिर से वो अपनी जगह पे चला गया, जो लैच था वहाँ पे वो फिर से चला गया, जहाँ पे वो पूरी रात सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. So, his brothers and sisters, of course, their wings were shorter than this seagull, this younger seagull. Then also he was very afraid to fly. So even when each of his brothers and his little sister, their wings were very shorter than this younger seagull. Then also he was not able, because he had not that courage. वो बहुत डरता था। उसके जो भाई बहन थे वो उससे भी छोटे थे, उसके विंग्स जो थे वो ये यंग सिगल से भी छोटे थे, फिर भी वो उड़ गए, पर वो अभी भी वहाँ पर ही है। जो क्रॉक होता है, उसका जो हाई पीक होता है, वहाँ पर ही अभी वो अकेला ही है। रैन टू द ब्रिंक, तो वो सारे लोग चले गए थे। फ्लैप देयर विंग्स, वो सारे जो अपने विंग्स थे वो फ्लैप भी कर रहे थे और उड़ गए थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, राइट? तो उसे जो उड़ने के लिए जंप करना था, ही वॉज नॉट एबल टू जंप, राइट? सो हियर यहाँ पे प्लंग का मीनिंग क्या कह सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे प्लंग का मीनिंग ये हो सकता है कि इफ वी वॉन्ट टू जम्प विथ फोर्स, सो दैट इज प्लंग। टू टेक दैट प्लंग मतलब जो फोर्स से उड़ना चाहिए वो फोर्स से वो नहीं उड़ रहा था। विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, जो उसे बहुत ऐसा डेस्परेट वो हो रहा था, पर उसके विंग्स जैसे उड़ने चाहिए, अगर उसमें करेज ही नहीं था तो वो उसे अपने विंग्स को कैसे फोर्स कर सकता था। सो वी कैन से दैट he failed to muster up courage to take that plunge, that force which appeared to him so desperate. His father and mother had come around
कॉलिंग टू हिम श्रीली। सो यहाँ पे श्रीली का मतलब क्या हो सकता है कि वो उसे लाउडली बुला रहे थे, राइट? तो यहाँ पे श्रीली का मीनिंग क्या हो सकता है? टू कॉल loudly. Students, note down these new words in your notebook, okay? So, Shreeli means to call loudly. So, सिगल के पेरेंट्स जो थे, जो नीचे थे, उसके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स भी थे, तो वो उसे बुला रहे थे, उससे जोर जोर से ऐसे बुला रहे थे. देन अपब्रिंगिंग हिम मीन्स स्कॉल्डिंग हिम, कि देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं. तो उसके पेरेंट्स उसे वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जोर से बुला रहे थे, उसे स्कॉल्ड कर रहे थे. देन थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लैज unless he flew away. But for the life of him, he could not move. So here, his parents, Sigal's parents, thought that let him starve on his ledge. उसे कुछ खाना पीना नहीं देते तो फिर क्या होगा? भूख का मारा वो अपने विंग को, अपने पंख को फोर्स देके उड़ सकेगा, राइट? सो इट वॉज वेरी गुड थिंग कि उसके पेरेंट्स उसे एनकरेज कर रहे थे, राइट? आगे भी देखेंगे कैसे एनकरेज करते हैं. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. पर उसके लिए वो कभी भी उड़ नहीं सकेगा, ऐसा वो सोच रहा था सिगल. दैट वॉज 24 आवर्स अगो. ये 24 आवर्स अगो की पहले की बात है. सिंस देन nobody had come near him. So his parents, his brothers and sisters were not there with him, right? Because they wanted him to fly away. That's why they were not there. They didn't come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish, right? So the day before, पहले के दिन की बात है, all day long, पूरे लंबे दिन के लिए he had watched his parents. This young Sigal, he watched his parents flying about with his brothers and sisters. What the parents were doing? They were flying with Sigal's brothers and sister and they were perfecting them. वो उसे perfect कर रहे थे सारी बात के लिए, कैसे उड़ना चाहिए, मतलब कैसे कैसे perfect, कौन कौन सी बात में perfect कर रहे थे उसके parents. Perfecting means to make something perfect, right? So here perfecting means to make something परफेक्ट. ओके, तो जब जब मैं लिखती हूँ तब आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना. परफेक्टिंग मीन्स टू मेक समथिंग परफेक्ट. तो उसके पेरेंट्स उसे आर्ट ऑफ फ्लाइट में परफेक्ट कर रहे थे, राइट? जैसे ह्यूमन बीइंग के बच्चे होते हैं तो उसके पेरेंट्स उसे चलने में परफेक्ट बनाते हैं, राइट? तो यहाँ पर सिगल के पेरेंट्स भी उसे उड़ने के लिए आर्ट ऑफ फ्लाइंग में परफेक्ट बना रहे थे. और क्या क्या सिखा रहे थे? दे वर टीचिंग देयर चिल्ड्रन हाउ टू स्किम द वेव्स. स्किम मीन्स कैसे ऐसे रिमूव कर लेना विंग्स को, वो टू रिमूव क्विकली. सो यहाँ पे स्किम मीन्स टू रिमूव लाइटली जस्ट अबाउट अ सरफेस. ओके, तो यहाँ पर सी को मतलब कि वो जैसे उड़ते हैं, डाइव करते हैं फिश के लिए, तो कैसे उसे मूव करना है, सो वो भी सिखा रहे थे. द वेव्स, हाउ टू स्किम द वेव्स, राइट? वेव्स में कैसे आगे पीछे करना होता है उड़ने के लिए, तो वो भी सिखा रहे थे.
and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it. So, herring means a soft, fine sea fish. Okay, so herring, it's a kind of fish जो ग्रुप में रहती है. So, उसने क्या देखा? In fact, seen his older brother catch his first herring and devour it. Means he was very hungry and he was eating that fish. Right? So here, devour means to eat something. To eat something because of hungriness. Okay, so that is the meaning of devour. Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. Right? तो वो क्या कर रहे थे, उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, वो सर्कल बना के, हो सकता है कि वो यंग सीगल को चिढ़ाना चाहते कि देखो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं. तो वैसे बहुत लाउड में वो लाफ कर रहे थे, जैसे उसका वे बहुत अच्छा नहीं होता, पर उसे स्कॉल्ड कर रहे थे उसके पेरेंट्स यंग सीगल को, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे. सर्कल अराउंड राइजिंग प्राउड कैकल एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड about on the big Platonia midway down the opposite cliff, taunting with his cowardice. Okay, so here all the morning the whole family had walked about on the big Platonia. Means plateau means a kind of straight. Okay, so the position was very straight like that, midway down the opposite cliff. So that was the so all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice because he had lake courage. So his behavior was like he was afraid of flying. So that is a kind of that cowardice. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. So the sun was now ascending the sky, then blazing. So it was burning with the bright strong flames because sun was ascending. So बहुत ऐसी बर्न हो रहा था, क्योंकि जैसे फ्लेम होती है स्ट्रॉन्ग, वैसे वो बर्न हो रहा है. सो दैट इज blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. क्योंकि प्रीवियस नाइट से तो उसने कुछ खाया पिया ही नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर्स तो उड़ गए थे एंड ही वॉज द ओनली देयर. तो इसलिए भूख के मारे भी उसे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, हीट फील कर रहा था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लैंड. तो धीरे से वो जो लैंड का एज था वहाँ पे वो धीरे से आया. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. कैसे वो खड़ा रहा? He was standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other. So one after another, he closed his eyes and pretended to be falling asleep. And वो pretend कर रहा था जैसे वो सो रहा, falling asleep. Okay, so it's all about our 2 pages, students. So here यहाँ तक हमारा लेक्चर रखते हैं 2 पेजेस तक. नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा 2 पेज करके हम लोग ये पूरा कंप्लीट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू एंड अप अवर टुडेज लेक्चर एंड इन योर होमवर्क जो कुछ भी हमने आज सीखा है ये 2 पेज में
जो कुछ भी न्यू वर्ड्स आते हैं और जो मैंने आपको न्यू वर्ड्स बोले हैं, लिख कर दिए हैं, मीनिंग दिया है, वो आपको होमवर्क में करना है। और ये एक्सरसाइज में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, that first question you have to write it down in your notebook. Okay, so it's all about your homework, all new words in your fair book. न्यू वर्ड्स फेयर बुक में लिखने हैं और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी रफ बुक में लिखना है, एंड सेंड इट टू मी ऑन टाइम. ओके स्टूडेंट्स, एंड द सेकेंड थिंग, if you find any difficulties regarding this, you're free to ask me. Thank you, my dear all students, and have a nice day.